Now let's speak of this big development that has happened in the case of Disha Patni's shooting case at her residence in Bareilly. Now the alleged main shooter behind the attack of the actor's residence, the shooting incident that happened along with the accomplice, they have now been killed in a joint encounter by the Haryana STF and the UP police in Ghaziabad's Tronika city. Both of the suspects were said to be linked to the prominent Rohit Godara Goldi Barar gang. Now, as far as the case that stems from a shooting that happened early in the hours of the 12th of September, when gunshots were fired at Disha Patni's ancestral home in Bareilly civil line areas. Now, police say that the firing that happened around 3:45 a.m. and startling the quiet residential neighborhood, and there are CCTV footage as well that you can see on your screens right now. On the day of that shooting, that incident that captures the entire incident, the CCTV footage where you can see these two individuals on a bike. Now, we'll break down the details that are now coming exactly when it comes to the main shooter and his accomplice, according to the police, who have been killed in this incident, and they have been gunned down in this joint operation. The duo, who've been identified as Ravindra and Arun, were spotted in Ghaziabad, after which a trap that was laid down, and they were ultimately killed in retaliatory firing. Major encounter by the UPSTF in the joint operation by the Delhi and Haryana police. You have eliminated two of the, gangsters who were in touch with international gangsters also. What was the operation all about? किस तरह के हुआ सर? आपको पता होगा कि ये दिशा पाटनी जो अभिनेत्री उनके घर पर बरेली के जो पैतृक आवास उस पर 12 तारीख को फायरिंग हुई थी सुबह। उसमें केस रजिस्टर हुआ था, केस संवेदनशील था और इसको वर्कआउट करने के लिए सारी टीमें इसमें लगी हुई थी। और चूंकि इनका जो कार्य क्षेत्र हरियाणा और दिल्ली काफी रहा है, इसका बड़ा नेटवर्क है वहाँ पे, क्योंकि इसका जिम्मेदारी रोहित गुदार और गोल्डी बरार ने एक पोस्ट से ली थी, तो इसलिए इसमें हरियाणा एसटीएफ और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो दिल्ली की है उससे संपर्क भी किया गया और साझा रूप से इसमें इसको विकसित करना शुरू किया गया। और इसकी कई सारी जब टेक्निकल एनालिसिस सीसीटीवी और सूचना संकलन से ज्ञात हुआ कि ये जो दोनों अभियुक्त जिन्होंने फायरिंग करी है वो रविंदर रोहतक और अरुण सोनीपत के रूप में स्टैब्लिश हुए। फिर उनको जब ट्रेस करना शुरू किया गया तो उनकी काफी मूवमेंट्स मिली जिनको लगातार ट्रैक किया जा रहा था। आज ये सूचना प्राप्त हुई कि ये दिल्ली की तरफ से ये गाजियाबाद आने वाले हैं। इस पर संयुक्त टीम के द्वारा गाड़ाबंदी की गई और उनको रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस की टीम पे इन्होंने जबरदस्त फायरिंग करी। इन्होंने बहुत ऑटोमेटेड वेपन जिगाना और ग्लॉक से पुलिस पे फायरिंग करी। जवाबी पुलिस फायरिंग में जो कंट्रोल तरीके से सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने करी, उसमें दोनों बदमाश घायल हुए जिनको अस्पताल ले जाया गया जहां इनकी डेथ हो गई। सर, जिगाना इज अ फॉरेन मेड पिस्टल। अब आपको लगता है कि गैंगस्टर्स अब इन पिस्टल्स का पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं? कितनी राउंड फायरिंग हुई सर? जिगाना डेफिनेटली एक ऑटोमेटेड टर्किश पिस्टल है और बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन है। तो इस जो वेपन वाला है इस पे तो एक काम अलग से हो ही रहा है। इसमें कई लोग पकड़े भी गए हैं, जो इसमें कुछ इंटरनेशनल रैकेट्स भी हैं। तो बाकी जैसे जो यहाँ पे मौके पे फायरिंग हुई है उसके आप देख रहे हैं एफएसएल यहाँ पे वो सब चीजें कर रही हैं। थोड़ी देर में वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। Thank you so much for talking to us. And certainly, Jigana pistol being used by these gangsters is an important thing. You can see these are the marks which are certainly there on the ground where the bullets were recovered, and throughout this particular track for good 50 to 60 meter till that particular vehicle, the police van is situated. The cartridges have been found. So that's a big development which is happening in this case. Well, let's take you through the sequence of events that ultimately led to the police and to the shooters who were ultimately then killed in this encounter operation. It was on the 12th of September, early in the morning around 3:45 a.m. Two of them, individuals traveling on a bike that was spotted by the cops. This is coming in as far as the incident that led to the encounter of these two individuals who were said to be linked to the criminal gang. The trap that was laid near the Tronika city there in Ghaziabad. And upon spotting the police, the gunmen opened fire at the police, and what has now been said that policemen were also injured in this firing. The police, in retaliatory firing, began shooting at the two individuals who were said to be involved in the shooting incident back on the 12th of September. And 5 days later, we are looking at this joint operation that has been carried out by the two state polices. Both of the shooters, however, sustained multiple injuries. Both were taken to the hospital as well, where they were both declared dead. Now, what is being said, this is a concerning point where Glock pistol and Zigana pistol is said to be recovered, and a huge cache of ammunition that has also been seized. Let's in the meantime play out other reactions that are now coming in on how this encounter that was actually carried out by the two state polices.
एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट कर इस गैंग को वर्कआउट किया गया और आज सायंकाल में एक मुठभेड़ में ये 2 शूटर्स मार गिराए गए हैं। इसमें रविंद्र का आपराधिक इतिहास अच्छा खासा है। इसके द्वारा पुलिस पर भी पूर्व में फायरिंग की गई है, जिसमें हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल की छाती में गोली लगी थी। मुठभेड़ में इनके पास से 2 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक जिगाना की पिस्टल है और एक ग्लॉक की पिस्टल है। साथ ही बड़ी संख्या में 9mm के कारतूस भी बरामद हुए। अब मुठभेड़ के बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस गैंग के सभी छोरों की, इसके सारे मेंबर्स की जानकारी भी की जा रही है, ताकि संपूर्ण गैंग पर एक्शन लिया जा सके। Now there is a breaking update coming in Disha Patni residence firing case, where the inside story of has revealed how there were at least 5 shooters that were sent by the Goldie Brar gang, who said to have later claimed responsibility for this attack and had executed it. Now 2 suspects who have been killed in this encounter, 2 of them however still remain at large. What is being said that over 2,000 CCTV footages that are also being scanned to track them. मोहित होम हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। मोहित, बताया जा रहा है कि 2 को तो मार गिराया गया है, लेकिन और भी कथित तौर पे जो गैंगस्टर्स है, जो इन्वॉल्व है शूटिंग इंसिडेंट में, उन्हें आप पकड़ने की दौड़ पे लगी हुई है पुलिस। बिल्कुल, देखिए पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई थी। तो पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें देखा गया है कि 4 शूटर्स जो हैं वो एक पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं, जिसमें 2 शूटर वो जो है जिनको बीती रात गाजियाबाद में मार गिराया गया है। और 2 शूटर और थे जिनकी पहचान हुई है, उनका नाम नकुल और विजय है। ये दोनों भी वहीं बरेली पहुंचे थे। इनके साथ एक शूटर और था। कुल 5 शूटर पहुंचे थे जो बरेली के पंजाब होटल में रुके थे और वहीं पे इन्होंने प्लानिंग की थी। हालांकि एक शूटर की तबीयत खराब हो गई थी, जो वो वापस लौट गया था। लेकिन 2 जो शूटर हैं जो अब इनकी तलाश की जा रही है, वो जो स्प्लेंडर बाइक पे वहां पहुंचे थे। 2 बाइक्स पर शूटर्स थे, एक अपाचे बाइक और एक स्प्लेंडर बाइक। अपाचे बाइक वाले जो शूटर्स थे, उन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। वो घर के बाहर पहुंचे थे, उन्होंने फायरिंग की थी। लेकिन जो 2 स्प्लेंडर बाइक वाले शूटर्स थे, उन्होंने घर में से एक दिन पहले पूरी रेकी की थी और रेकी करने के बाद जो पूरा इनपुट था वो दोनों को दिया गया था, रविंदर अरुण को, और अरुण और रविंदर ने वहां पे फायरिंग की थी। तो क्रॉस फायरिंग में जो दो शूटर्स मारे गए हैं मोहित, क्या ये वही 2 शूटर्स है जो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुए हैं? और पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनकी तरफ से वहां पर बरामद किए गए हैं। बिल्कुल वही 2 शूटर्स हैं, वही अपाचे बाइक है जो बाइक सीसीटीवी कैमरा में नजर आ रही है। उस पर बैठे वो 2 शूटर्स हैं, रविंद्र अरुण वही शूटर्स हैं जिनकी पहचान की गई थी, जो 11 तारीख को बरेली के एक पेट्रोल पंप पे नजर आए हैं और जो होटल के अंदर एंटर किए थे। होटल के सीसीटीवी से भी साफ उनकी फुटेज मिली है। पुलिस को एंटर करते होटल के अंदर नजर आए हैं, प्लानिंग से पहले होटल के बाहर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो बाकी शूटर्स और बाकी गैंगस्टर्स के छानबीन में लगी हुई है पुलिस। मोर देन 2,000 footages that has been scanned on part of the CCTV footages along the way, where they are now said to be associated or linked to the Goldie Brar gang as well, which had claimed responsibility for the shooting incident. मोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।